Okay, so we were discussing difference between the CBDC and cryptocurrency. So I was saying कि औशिक आप word use कर रहे थे कि opaque है cryptos. Cryptos को हम opaque नहीं बोल सकते because we also say कि cryptos have led to decentralization. So decentralization and opaque at the same time cannot be used because we say कि decentralization is more associated with transparency also. So दैट इज नॉट द केस क्योंकि क्रिप्टोज के केस में भी ये होता है ना कि अगर आपने एक बार जो ट्रांजैक्शन है वो कर दिया तो यू कांट चेंज द थिंग्स डिसेंट्रलाइज तरीके से दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं सो वी कांट यूज दिस वर्ड ओपेक फॉर क्रिप्टोज So cryptos relatively volatile ज़्यादा रहते हैं, तो risk is more there in case of cryptos because they're not regulated also. They're not issued by any central agency or a central bank. So that is the risk with that. Basically, rather saying opaque, they are difficult to track as they run on the algorithm and outside the purview of the regulatory agencies. हाँ वो बोल सकते हैं. So India will work with Sri Lanka on its debt treatment. So China की debt diplomacy और debt policy is on one side and India का जो role है that is we can say more federal in nature we can say and हम यहाँ पे श्रीलंका को हेल्प करेंगे हाउ इट कैन बेसिकली कम आउट ऑफ दैट डेट या डेट मैनेजमेंट की हम बात करें सो that's how India is going to even, financially, how we are trying to strengthen our bilateral relationship. So Finance Minister holds talks with Sri Lankan President. They discuss cooperation in intergrid connectivity, aviation sector, power projects, and oil exploration in the town of Mannar. So Gulf of Mannar, important location from the perspective of geography. And there is one strait also. Strait का नाम मैं अभी I can't recall exactly क्या है. So economic and technology cooperation agreement is being signed between the two countries. So that is the update. And apart from this, 15 million grant assistance from India for the promotion of Buddhist ties between the countries and $10 million out of the amount funding for the solar electrification of the religious places. Mansi, that state is Park State. Okay, thank you, Pesh. Park State is the exact name. So $4 billion have been given by India in the form of assistance to Sri Lanka during specifically to deal with this economic crash of the country that was again a result of the China's debt policy. So China क्या करता है बहुत ज़्यादा debt दे देता है एक country को. So initially it appears कि China एक helping hand की तरह या important role play कर रहा है एक particular country के लिए, but longer time perspective से countries they fail to understand कि क्या repercussions हो सकते हैं. तो ultimately ऑब्वियसली अगर किसी एक कंट्री की इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है अगर हम ये टर्म यूज करें सो वो अमाउंट रीपे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अल्टीमेटली लेट्स टू द सिचुएशन ऑफ डेट एंड दैट्स हाउ इवन इकोनॉमिक क्राइसिस इट बिगिंस इन अ पर्टिकुलर कंट्री सो वहां पे इस तरीके से चाइना अपना इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इंक्रीज कर रहा है सो चाइना का बेसिकली जो इसके पीछे इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव है that raises questions. Mansi, I have a question to you that how this technical, if you can shed some light on this technical operation of IMF, that the Sri Lanka is saying that with the money of all the creditors will be able to unlock the second tranche of the IMF extended fund facility. So how this, what is the main crux of this? Do we have to keep some money collectively of all the countries as Sri Lanka in the banks of the IMF? Then IMF release that money. Is it so? नहीं ऐसा एज फार एज माई नॉलेज एंड अपडेट इज कंसर्न वो सिर्फ एसडीआर के केस में जो होता है दैट इज देयर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में आई डोंट थिंक सो आपको पहले फंड मेंटेन करना पड़ता है दैट इज एज पर माई नॉलेज मैं इसको 100% कंफर्म करके नहीं बोल रही हूँ तो जो इवन जो इकोनॉमिकली एड अमाउंट दिया जाता है आईएमएफ के द्वारा तो डिफरेंट आई वुड से कि बंचेस में होता है तो उसको हम ट्रांचेस बोलते हैं
So Sri Lanka, it must bring its major creditors जो हैं, like which includes China, Japan, India. So अगर इन तीनों countries का approval मिल जाता है, then only IMF goes ahead with giving that financial aid. और इसी में हम देखते हैं कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो होती है वो लंबे समय के लिए होती है. दैट सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू रिपे इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज नो कंपल्शन टू पे ऑन द अर्लियर बेसिस. So that is the beauty of the IMF extended fund facility in comparison to the other institutional financial mechanism. और इस पे प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है कि दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय व्हिच बॉडी, लाइक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एंड देयर वाज वन मोर फैसिलिटी. आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू समथिंग लाइक एग्जैक्ट नेम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसका भी, बट क्वेश्चन यही था कि इट वाज अवेलेबल थ्रू व्हिच बॉडी, तो आंसर वाज IMF. तो वो सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब इतना भी इसकी डिटेल्स में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बेसिक आइडिया होगा तो दैट वुड बी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि एक्चुअली ये होती क्या है. So specifically, emergency times में these facilities are used. So CJI says कि lawyers they should not seek adjournments unless it is necessary. So कहीं ना कहीं seeking adjournments also it leads to delaying the justice delivery process जो है that gets delayed. So ये कि छोटे सा mention है and तारीख पे तारीख this. I think, Mansi, this power lies in the hands of the judges rather than the lawyers. So the judges, if they are considering that the lawyers are unnecessarily, demanding the adjournments and creating, without having any substantial proof, they are demanding adjustment time and again to extend the, time frame of the case. So it is in the hands of the judges. They should also ठीक है, comply with that. पावर की बात ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज हाईलाइट की जा रही है, मतलब अगर हम बिहेवियरली बात करें लॉयर्स की, तो ये देखा गया है कि जो अडजॉर्नमेंट स्लिप्स हैं दे वर सर्कुलेटेड द मोमेंट केसेस वर लिस्टेड, इवन फॉलोइंग द अर्जेंट मेंशनिंग बाय द लॉयर्स फॉर अर्ली हियरिंग ऑल्सो. सो ये फिनोमिना और बिहेवियरल एस्पेक्ट को ही इज ट्राइंग टू हाईलाइट. Okay, so I think इसमें corruption एक बहुत बड़ा factor है. moral cooperation of the lawyers is important. Yes, इसमें करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. जैसे कि आपने बहुत अच्छी चीज उठाई अभी कि किस तरीके से जो लॉयर्स हैं वो अपना केस ऊपर या नीचे करवा लेते हैं. तो that lower judicial staff should be very much made fit to deal with this by using digital mechanisms of providing these slips of adjournment. Like अगर judges are trying कि अर्ली हियरिंग हो जाए किसी पर्टिकुलर केस की, तो लॉयर्स तभी दे ट्राई टू सीक अडजॉर्नमेंट, या ये जो बोला जा रहा है अडजॉर्नमेंट स्लिप्स तभी सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है. तो अर्ली हियरिंग्स ऑब्वियसली दैट इज अ गुड स्टेप, प्रोएक्टिव स्टेप है. एंड जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसके लिए भी एक माइनर इनिशिएटिव है. सो उसमें बेसिकली हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ऑन द पार्ट ऑफ लॉयर्स, या हम जुडिशरी बोल सकते हैं. So statement coming from Elon Musk to the Prime Minister Sunak, who is the Prime Minister of England, कि we witness most disruptive force in history. So that most disruptive force is artificial intelligence. And Elon Musk, he says कि AI, it will replace all the jobs. So I would say कि again a few days back I was again reading one article. So उसमें ये बोला जा रहा था कि AI jobs replace नहीं करेगा, आप जॉब्स किस तरीके से कैरी आउट कर रहे हो, वो जो प्रोसेस है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ AI. सो सेइंग दिस कि AI 100% जॉब्स को रिप्लेस कर लेगा, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट. एंड मैं बस इतना ही बोलूंगी, द मैनर इन विच जॉब्स आर कैरिड आउट, टास्क जिस तरीके से फुलफिल किए जा रहे हैं, वो जो उसके पीछे का जो प्रोसेस है ना उसमें चेंज आएगा विद द हेल्प ऑफ AI. सो आप लोग इस पे But क्या I think, Mansi, yeah, I agree with you that 100% the jobs will not be replaced with the advent of the AI. But if we talk about the recent examples, we have some special economic zones. If we talk about the Delhi NCR region, if we talk about the Gurgaon, Manesar
Dobhal region that even reaches out to the Gujarat. We have a lot of industries, and in those industries, according to the local reports, there is a massive and there is a massive inclusion of the CNC machines that runs on the principle of the AI, and that has led to major shuffle in the labors. सीएनसी तो मशीन कहीं ना के लिए यूज की जाती है, स्पेसिफाई करके बताओ इन डिटेल, जो अब डेटा दे रहे हो क्या? CNC machines basically are the machines which runs on the AI algorithms. Number तो one, किस there's a पर्पस के simple लिए यूज definition. की जाती है? आई एम आस्किंग द पर्पस। ओके, अगर आपको टेक्सटाइल सेक्टर में साड़ियाँ बनानी है, चादरें बनानी है, तो उसमें सीएनसी मशीन, जूते जूते बनाने तो उसमें सीएनसी मशीन। बेसिकली दे आर द रोबोटिक्स मशीन, जो सारा आदमियों का लेबर का जो काम होता है वो सीएनसी मशीन करती हैं आज के टाइम पे। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें पेंटिंग से लेके स्क्रू तक, उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस है, उसके बाद टायर्स है, सब कुछ सीएनसी मशीन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम 100% की बात ना करें तो अराउंड 50% तो चेंज आ ही रहा है एआई से। तो ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि 50% चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जहाँ पे जॉब्स रिप्लेस हो सकती है। बट एक तरीके से अगर आप स्पेसिफिकली अभी टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हो, तो ये मशीन्स को हैंडल करने के लिए भी तो आपको ह्यूमन मानसी, चाहिए ना। यस इससे औषित। पहली बात यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि एआई विल रिप्लेस द जॉब्स, तो कौन से जॉब रिप्लेस करेगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन को ऑल तो ऑल फिर, द जॉब्स हाँ की बात हो रही है ना, एक हाँ, तो ये गलत है, ऑल जो जॉब्स बेसिकली, एक्सट्रीम हो क्योंकि गया। कोई कोई जो जॉब्स होगा वो हमेशा ही सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए इंटेलेक्चुअल वर्क हो गया, या फिर डॉक्टर हो गया, आप हाँ, एआई से हो सकता है। गाना नहीं गवा सकते। या फिर आप एक जो, जैसे बोला गया था, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेता हूँ बाकी सबसे, कि ऑनलाइन बुक आ जाएगा ना, ई बुक आ जाएगा, तो हम्म। जो फिजिकल बुक है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर वैसे ही ये देखा गया है कि अगर ऑनलाइन ई पेपर आ गया तो न्यूज़पेपर का चलन खत्म हो जाएगा। हम्म। फिर वैसे ही देखा गया, अब बाकी सब फील्ड में भी ऐसे ही हुआ था। मैं स्पेसिफिक फील्ड की बात करता हूँ, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, एआई का जॉब जो होगा ना, मॉडिफाई होगा मेरे हिसाब से, वही रिप्लेस ना। नहीं होगा, चेंज। अब एआई को कौन बनाएगा, उसका रोबोटिक्स कौन बनाएगा, उसका ह्यूमनॉइड, हम्म। उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, इस पर बात होगा, इसका नया जॉब खुलेगा, न्यू जॉब न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब होगा। अपॉर्चुनिटीज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, जैसे मतलब वी कैन से। कंप्यूटर ने आईटी सेक्टर को लेकर आया, वैसे एआई भी एक नया सेक्टर को लेकर आया, मतलब हाँ, ज्यादा। हम बट बस। हाउ यू विल इंश्योर कि जो, ये तो आप, मैं अग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं जॉब तो क्रिएट होंगी, लेकिन वो बहुत स्पेशलाइज्ड होंगी, टेक्निकल होंगी, स्किल्ड होंगी। जो हम्म। लोग पहले से ही वो काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी आप कैसे इंश्योर करोगे? इससे पहली बात है कि आपको अपस्किलिंग करना जरूरी होगा, क्योंकि जैसे आप देखोगे कि पहले फॉर एग्जांपल दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट कम था, तो जॉब कम था। अब एसी आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो मैकेनिक्स का जॉब बढ़ गया। आईटीआई जो होता है मैकेनिक्स बेसिकली, उसका जॉब बढ़ गया। छोटा छोटा कंपोनेंट बनाना है, उसके लिए मैकेनिक्स चाहिए, उसके लिए हर एक चीज फील्ड में अलग अलग है। तो जो लोअर लेवल जॉब होगा वो बेसिकली मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा, और जो हायर लेवल होगा वो आपका इंटेलेक्चुअल और आईपीआर से रिलेटेड होगा, जो हर फील्ड में होता है। तो एआई में तो भी होगा मुझे कि एआई का तो एल्गोरिथम मुझे कौन ऐसा बनाएगा। जी, मुझे ऐसा लगता है, आपकी सारी बात करेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एआई लेड जो मशीन्स और मैकेनाइजेशन होता है, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सो मानसी, आई विल रेक्टिफाई यू, आई वाज नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द टेक्सटाइल, आई वाज टॉकिंग अबाउट द जनरल इंडस्ट्रीज। हाँ, वो सो आपने अगर उसको इस एग्जाम्पल दिया तरीके था। से आता है, हम्म। या अगर उसको इस तरीके से मशीन जाती हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो मशीन्स ले लेते हैं, एंड दे डू नॉट इवन थिंक where the laborers will go. So I think being the policy makers and being the aspirational policy makers, we should focus upon this aspect also, that how on the immediate basis we will account their livelihood of laborers who will go out of the industries and will search for the jobs, because they will not be having jobs. आप 55 साल की उम्र में एक आदमी को निकाल रहे हैं जिसके 4 बच्चे हैं, एंड दे आर आल्सो नॉट अर्निंग। हाउ यू विल इंश्योर कि वो स्किल करेगा, रीस्किल करेगा, अपस्किल करेगा? तो बीइंग द प्रवेश, पॉलिसी मेकर्स, आपके वी से हम, टेक इनटू अकाउंट आप एवरीथिंग। क्या मेजर्स सजेस्ट करोगे सो दैट हम इंश्योर कर सके कि द पीपल हु वुड बी फायर्ड उनको जॉब्स मिले? तो मेरा इसमें यह है कि एकदम फास्ट एंड हार्ड एप्लीकेशन और इंक्लूजन ना हो मशीन्स का इन द इंडस्ट्रीज। अगर हो रहा है तो उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हो। जैसे कि हम मीम्स या नोटिस इशू करते हैं इंडस्ट्रीज में, उसका एक प्रॉपर प्रोविजन हो कि अगले 1 साल या 2 साल के अंदर हम इस तरीके की मशीन लाएंगे, तो उसके पीरियड में हम ही, मतलब बीइंग द इंडस्ट्रियलिस्ट, हम ही आपको जो है ट्यूटरिंग करवा रहे हैं आपकी, ताकि वो मशीन जो है आप उसमें स्किल हो जाए, उसको आप चलाना सीख जाएं। तो अलग अलग अगर आप तो प्रवेश सीख क्या जाएं। अभी नहीं हो रहा है ऐसा?
मशीन तो यही आप तो जो बोल मशीन का रहे बात कर रहे हैं, यहाँ एआई का बात हो रहा है। हम्म मशीन का बात करें, यहाँ एआई का बात हो रहा है। मशीन को ऑलरेडी हो ही रहा है हर जगह, मैकेनाइजेशन, हाँ, टाटा स्टील हो अलग गया चीज या होगी। चाहे रिलायंस हो गया, हर जगह मैकेनाइजेशन तो हो ही रहा है स्पीड में। और हम्म लोग तो अब स्किलिंग हो रहा है, और धीरे धीरे लेबर का भी फोर्स कम हो रहा है। पहले अगर फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील के अंदर 81,000 लेबर्स थे, अब घट करके 27 के आसपास आ गए, 27,000 के आसपास। तो आई थिंक लेबर इनपुट कम होगा। बात यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि बाकी से इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करे, वहां जॉब प्रोटेक्शन कैसे हो। तो मैं पूरा डिफरेंट ही सेक्टर का बात कर रहा हूँ कि हम्म एआई के पीछे में रोबोटिक्स बन रहा है, तो रोबोटिक्स को कौन बनाएगा, उसको पेंट कौन करेगा, उसका उसका फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस कौन करे, उसके लिए अलग एक जॉब क्रिएट होगा, मैं उसका बात कर रहा हूँ। ऐसे हम्म एग्रीकल्चर में हमेशा बात होता था जॉब का कि कुल्हाड़ी कौन बनाएगा या फिर ट्रैक्टर कौन बनाएगा। अब बात होगा कि रोबोटिक्स से अगर आप यूरिया स्प्रिंकलर कर रहे हैं तो यूरिया कौन बनाएगा, या रोबोटिक्स कौन बनाएगा, या फिर इरिगेशन के लिए पाइप कौन बनाएगा। तो डिफरेंट जॉब ही पूरा डिफरेंट हाँ है नया फोर्थ जनरेशन में। तो हम्म उसके लिए आप जो बात करेंगे ना, वो तो है आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो अभी भी हो रहा है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो है ना, कि वो टेक्निकल जो स्किल है आईटीआई के अंदर में, उसका एजुकेशन को कैसे हम लोग जोड़े जॉब डिमांड से। तो जो जॉब डिमांड बढ़ती चेंज होते रहता है, उसके साथ ही एजुकेशन भी चेंज होता रहना चाहिए, रादर देन कि वही पढ़ाया जा रहा है सेम चीज, उस पर बात होना चाहिए एक्स्ट्रा स्किलिंग ठीक है, पर कह रहे बेसिकली। कि जो आईटीआई हाँ, और जो आईआईटी है उसमें इसका इंक्लूजन होना चाहिए एआई लर्निंग का। एआई आईआईटी में तो है ही एआई का, लेकिन आईआईटी वाला बेसिकली जो एआई का आईटीआई। रहता है वो इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से होता है, मतलब आईपीआर से होता है कि आप कोडिंग करेंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे। आईटीआई वाला जो एआई लर्निंग है वो होता है बेसिकली लेबर से रिलेटेड, आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे, या फिर आप होता है ना, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ जॉब्स है दोनों तरफ, तो उसको ठीक प्रमोट कर। ठीक। और हमेशा से ये अभी का नहीं है, अगर हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे ना प्रवेश, तो जब स्टीम इंजन का आया था ना, उसमें भी लोग परेशान थे टेक्सटाइल के समय कि मेरा जॉब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि जो सिल्क का साड़ी या फिर कॉटन साड़ी जो आज महिलाएं पहनती है, आज से 100-200 साल पहले खाली एलिट लोग पहनते थे, रॉयलिटी के लोग पहनते थे, आज सब कोई पहनते हैं। तो आई थिंक जो एक जो प्रॉस्पेरिटी आएगा वो डिफरेंट लेवल का होगा, मुझे लगता है एआई से। अब अलग बात है, आप बात करेंगे एआई का जो चैलेंजेस है कि या फेक न्यूज हो गया, डिस इन्फॉर्मेशन हो गया, या फिर वो डिफरेंट चैलेंज है, उसको डील करना चाहिए, वो बात अलग है पूरा। जॉब से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, स्पेस जॉब से स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली अब हम सर्विसेज सेक्टर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें स्पेसिफिकली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो वी आर सीइंग कि इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई है। दैट इज बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज्यादा एग्जिस्ट किए एंड इनपुट कॉस्ट जो है दैट वाज सीन राइजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फ्लेशन वाज अ चैलेंज, जिसकी वजह से अगेन डिमांड थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला। बट अगर हम ग्लोबल ऑर्डर्स की बात करें तो ग्लोबली ऑर्डर्स हैव इंक्रीज्ड एट देयर सेकंड हाईएस्ट पेस इन द 9 years। सो मतलब ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे बट एट द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट भी अगर इंक्रीज होगी तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो एक ये छोटा सा अपडेट है। सो वी टॉक अबाउट सेल्फ रिलायंस इन द ऑयल सेक्टर। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें या नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो वी सी एक बेसिकली जो रिकमेंडेशन हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम an individual Anil Agarwal who is the Vedanta's chairman, he says कि urgent reforms domestically जो हम कर सकते हैं one can be कि जो हमारा oil and gas sector है we can lower the taxes and that can help in expediting clearances to lift domestic exploration and production as far as it is about the oil and the gas sector। so एक ये measure है कि अगर टैक्स कम कर दोगे तो वो एज अ एनकरेजिंग फैक्टर या स्टेप की तरह रहेगा एंड उसके अगेन सब्सिक्वेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सो एक तरीके से हायर टैक्सेस जो हैं अभी दैट आर मोर लाइक कंस्ट्रेंट्स which includes endless litigation with the government। so इंडिया का जो proven oil and gas reserves हैं they were 3 times its annual consumption, yet जो country is still we are importing 90% of our margin of fuel needs and requirements हैं। and he also emphasized कि exploration efforts they were critical to tap जो भी हमारी कंट्रीज में रिजर्व्स हैं। सो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अमाउंट लार्ज अमाउंट चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो टैक्स विल बी रिड्यूसिंग दैट, सो दैट वुड बी फास्टनिंग अप दिस प्रोसेस। तो एक ये मेजर सजेस्ट किया गया है।
Okay, Oshik, we can take up Indian Express now. Now starting with the Indian Express, we have already talked about the Delhi pollution hikes and how can be it will be curbed. Farm fire spikes. Work start on shaping first national security strategy. तो ये देखा गया है कि वी डोंट हैव एनी डॉक्ट्रिन विद स्पेसिफिक टू द नेशनल सिक्योरिटी वन. सो अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट इज बीइंग formulated by the NSC Secretariat with the consultation of various ministry. उससे एक तरह से जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी वो कोऑर्डिनेट किया जा सकता है आसानी से और एक रोबस्ट मैकेनिज्म बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए. तो इसलिए स्ट्रैटेजिक यहाँ पे सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट. मैं ये बोल रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स वेरियस एलिमेंट. अगर देखा जाए तो पहला आई थिंक इट वुड बी द डेमोग्राफिक डिविडेंड. अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो कुछ लोग उसमें से भटक करके रेडिकलाइजेशन या फिर जॉब क्राइसिस कारण सेपरेटिज्म हो सकता है. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पहला स्टेप. सेकंड इज वुड बी द वाटर सिक्योरिटी. वाटर सिक्योरिटी कारण जो फार्म क्राइसिस हो सकता है, इंडस्ट्रियल क्राइसिस, जो दैट वुड बी एट अ अनप्रेसिडेंटेड लेवल. फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान वहां पर वाटर क्राइसिस के कारण जो इशू हो रहा है विद रिगार्डिंग टू जॉबलेसनेस तो वो बढ़ जाएगा. तो सेकंड थर्ड वुड बी the strategy of the rescaling of the people labors. जो AI आएगा उसके हिसाब से जॉब जो डिफरेंट हो जाएगा उसके हिसाब से. हाँ, मतलब फोर्थ इसको होगी द बॉर्डर मैनेजमेंट. फिफ्थ टेररिज्म से रिलेटेड हो सकते हैं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल टेररिज्म उससे हम लिखा सकते हैं. तो फर्स्ट तीन चीज तो मेरे लिए तो नॉर्मल हो गया, जो सबके लिए नॉर्मल लगता है वो हो गया वाटर डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड यही हो गया. मतलब आई इसको हम थिंक अगर हम स्ट्रक्चरिंग की बात करें या फ्रेमवर्क थोड़ा बनाने की बात करें तो हम इसको डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड करके बात कर सकते हैं. उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों मॉडर्न और ट्रेडिशनल रहेंगे. मतलब कि सोशली इकोनॉमिकली क्या हो सकते हैं, जियो पॉलिटिकली क्या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे. एंड डेफिनेटली डिफेंस तो सबसे पहले रहेगा ही रहेगा. सो ये कुछ हो तो सकता कौशिक, आप मुझे बताइए कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सेक्रेटरेट है, हु हेड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट. सेक्रेटरीट है ना, ये तो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा इसमें. श्योर. सेक्रेटरीट तो हाँ होना चाहिए. So, okay, so let me rectify you. The National Security Council Secretariat is headed by the Prime Minister itself, with the answer you gave first, and in collaboration with the National Security Advisor. So this is not a secretariat as such. These are separate division under the Prime Minister organization. ओके ठीक है. We have already talked about the snake venom and जो भी acts इससे related है. Wildlife Protection Act, will Delhi see or remain soon? Government to wait and watch. So we have already talked about the GRAP policy, that is for very short term measures. For long term, we need more and more uh, inclusive and yet robust policy from the society aspect also. तो हमने बात किया था इस पर. And Oshik, you can have a look on this particular map, that how
the above, yeah, how the prominent agricultural cities are also bearing the brunt of pollution. As you can see that Jeend, it is having the AQI of 447, Karnal 3112, 424 is of Rohtak, and then again in the Delhi NCR we have 440 of Noida. So this is not a particular problem of one state or one UT. This is a problem of the whole North India, which is bearing the brunt of this hazardous pollution, causing a lot of angina and various kind of diseases in the people. What can help improve air quality? Wind, warm weather, and summer rain. So we had discussed, but we can take up in a very short discussion manner. The wind is most important because higher wind speed helps to disperse the particulate matter in a very quick manner. तो ये पहला होता है. सेकंड वुड बी कितना चाहिए विंड, तो लेस देन 10 भी चलेगा बेसिकली. लेस देन 10 में फिर अनफेवरेबल हो जाता है, तो मोर देन 10 चाहिए विंड स्पीड. एंड टेम्परेचर, इट इज dip in temperature, especially when the sky is clear at night, leads to phenomena called temperature inversion. तो अगर टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो एट अ लोअर लेवल्स टेम्परेचर जनरली वार्म होता है, एट अ हायर लेवल जनरली कोल्ड होता है. तो वार्म टू कोल्ड एट अ वेरी यूनिफॉर्म रेट गिरता है टेम्परेचर. लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में देखा गया है कि नीचे ठंडा है, ऊपर फिर गर्म है, फिर ठंडा है, तो इन्वर्ट हुआ टेम्परेचर ड्यू टू द पॉल्यूशन एंड स्मोक. तो इट इज मेंशन्ड हियर कि क्लियर स्काई मींस द ग्राउंड लूजेस हीट क्विकली. लेकिन क्लियर स्काई अगर नहीं होगा, अगर वहां पर बादल होगा या फिर पॉल्यूशन होगा, देन द लेयर ऑफ द वार्म एयर एक्ट्स लाइक अ लिड, ट्रैपिंग द कोल्ड एयर beneath it. Along with the cold air, the pollutants from the vehicle and dust also get trapped, and this causes temperature inversion. फिर रेन इंपॉर्टेंट है. अगर रेन अगर होगा तब जाकर के जो भी स्मोक पार्टिकल्स है, इसमें पार्टिकुलर मैटर्स है, दे विल बी डिस्पर्स क्विकली. लेकिन रेन नहीं होने से फिर वैसे ही रहने वाला है. तो आई I थिंक think विंड्स, टेम्परेचर एंड रेन इंपॉर्टेंट. yeah, all these examples which have been cited here by the editor, they are not in the hands of humans. So हाँ, ह्यूमंस के हिसाब से तो दिया हुआ ऊपर में कि कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन एक्टिविटी हो गया, जनरेटर्स हो गया, या फिर डिमोलिशन साइट हो गया, या फिर देखा जाए तो रेन के स्टबल बर्निंग हो पर्सपेक्टिव गया, से, तो हाँ, सब. हाँ, रेन के पर्सपेक्टिव से even let's yeah, also even talk in the about restaurants the also it is mentioned. Even in the restaurant, the use of coal and fossil fuels are clearly cited here. हाँ, I was saying कि from the perspective we of can rainfall, we we can also take talk up. about the desirability of having artificial rain. So वो कितना Artificial desired rain है? possibility है. Beijing have already used during the 2008 Olympic match and also afterwards also. But artificial rain is sustainable or not? It is the question. The questionable है basically. Long term sustainability मानसी, के लिए. मेरे हिसाब से उसको क्योंकि इतने for बड़े लेवल artificial पे rains कैसे you need करेंगे? to use some form of chemical sprayed into the atmosphere, and this Silver chemical may be iodide. or may not be toxic. तो Silver iodide is used. हाँ, so short term relief के लिए we can go ahead, क्योंकि हाँ, अभी हमें short term के लिए ही air quality worsen होती हुई दिखाई देती है stubble burning की वजह से, and then obviously because of the burning of जब cracks की वजह से वो फिर से इंडिया में जब प्रेसिडेंट आएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब आएंगे तब फिर कर सकते हैं आर्टिफिशियल. नहीं ओशिक, क्या वो उसके बाद इतने तो बड़े नहीं. लेवल पे पॉसिबल है करना? हाँ हाँ, possible. कर सकते हैं. मतलब एक सिटी लेवल पर कर सकते हैं. हाँ वही बोलो ना, मतलब अक्रॉस द स्टेट्स तो बड़ा नहीं, मुश्किल वो हो दिक्कत जाएगा. है, बहुत ज्यादा हाँ, महंगा हो जाएगा. हाँ, cost यूए भी किया है सिटी effective. लेवल पे और बीजिंग भी किया है. और ओशिक आप मुझे एक चीज पे थोड़ा बताइए, व्हाट इज क्लाउड सिल्वर लाइनिंग, क्लाउड सिल्वर थिनिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप बता सके तो? क्लाउड सीडिंग बोले ना आप? नहीं, क्लाउड सिल्वर लाइनिंग होता है इसमें, ये एक्चुअली इट इज अ मैकेनिज्म टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. Thinning ओ, of clouds. इसमें नहीं, क्लाउड सिल्वर लाइनिंग ये तो मतलब पता नहीं, लेकिन क्लाउड सीडिंग तो पता है. क्लाउड सीडिंग से आप ग्लोबल मैकेनिज्म, ग्लोबल क्लाइमेट को रिड्यूस कर सकते हैं, ये पढ़े हैं मतलब चीज. Okay, so क्लाउड सीडिंग, after some time we'll look at it in detail. वैसे क्लाउड सीडिंग बता देता हूँ कि क्लाउड सीडिंग में बेसिकली आपको केमिकल और कोई भी एक सिल्वर आयोडाइड होता है, उसको स्प्रे करना होता है. तो वही सिल्वर का आप उठा लिए होंगे, सिल्वरिंग मैकेनिज्म.
तो सिल्वर आयोडाइड होता है, उसको उठा करके आप स्प्रे किया जाता है इन द क्लाउड। उसी कारण जो क्लाउड का जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है अराउंड द न्यूक्लाई वो बढ़ जाता है, और वो फिर डिस्पर्स हो जाता है, और फिर रेनफॉल होता है उसके बाद। तो आई थिंक इट इज द मैकेनिज्म टू ऑल्टर द प्रोसेस विद इन द क्लाउड। एंड इवन लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, महंगा भी बहुत जाता है। प्रेरणा कैन लुक इनटू कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है फॉर क्लाउड सीडिंग एंड आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए भी। हाँ। Now coming to the next article, national security strategy. This is the first time India has come out with a national security strategy. We have already talked about this one. और मानसी ने कहा था कि कैसे वेरियस फॉर्म्स में इसको लिया जा सकता है, फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जियो पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल एक्सेट्रा, और क्या क्या इसमें हाईलाइट करेगा। तो नॉन ट्रेडिशनल वन, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं डिफेंस का, मैक्सिमम लोग डिफेंस का बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बाकी सब भी होता है, जैसे फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो हम सोचे नहीं, साइबर वॉरफेयर हो गया, वर्नेबिलिटीज इन इंडिया, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग बात करते हैं आधार डेटा का चोरी हो जाता है, मतलब थेफ्ट ऑफ द आधार डेटा, एंड ऑल्सो कुन्नम कुल्लम के प्लांट पर साइबर अटैक होता है, तो वो सब एक पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का। तो ऐसे प्रवेश ने कहा था एनएससी है क्या, तो प्राइम मिनिस्टर उसको हेल्ड करते हैं, And चेयरमैन करते हैं, USA, चेयरमैन का US प्राइम and मिनिस्टर। UK, they already have their national security strategies. हाँ हाँ। So, from that perspective, also India को भी अपनी policy and strategy होना they important है। also हाँ Challenges जैसे increase हो रहे हैं। हाँ they also include the threats and vulnerability identified across domains such as civil society organization, academia, media, think tank। तो फेक न्यूज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हिसाब से नहीं होता है, वो हो सकता है कि एकेडमिया को प्रमोट कर रहा है, या फिर डीप स्टेट, या फिर डीप नहीं, या फिर इंटेलिजेंसी, या फिर थिंक टैंक उसको प्रमोट करते हैं। जैसे हम लोग देखा गया, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एंटी रशिया फोबिया, या इसराइल वॉर के बीच में भी आप देखा गया कि कैसे एक हेटरेट फैलाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो वो सब इंक्लूड रहेगा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। तो वी कैन टेक इट अप इन द जीएस सिक्योरिटी पार्ट वन, कि कैसे हेल्प करता है। फिर वोकल फॉर लोकल, कैसे फेस्टिव शॉपिंग में हम लोग लोकल हैंडीक्राफ्ट और आर्टिजन को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए आप सेल्फी लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ आर्टिजन को के साथ, और आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक तरह का सोशल मीडिया के थ्रू एक अवेयरनेस प्रोग्राम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कैसे हम लोग लोकल आर्टिजन और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट बेटर रिन्यूमरेशन, और चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसको कम कर सकते हैं इंडिया, तो उससे इम्पोर्ट भी कम होगा। Oshik, I have a question to you on the handicrafts part. Um, in India, what the institution setup we have to deal with the handicrafts grievances and problems? Currently, I have a little knowledge about it. I have to guess. क्या आप guess कर सकते हो इसमें? Okay, so KVIC हो सकता है, sorry. KVIC, खादी No, no, वाले जो no, that is KVIC is not that. So basically, we have a development commissioner specifically as an institutional office to deal with the grievances and the implementation of the schemes in the particular handicraft sector, and to deal with the textile also. So handicrafts के लिए majorly we have a development commissioner in India as a statutory body under the Ministry of Textile. हाँ, मिनिस्टर टेक्सटाइल के अंदर बेसिकली। हाँ, ये पैन इंडिया लेवल पे है प्रवेश। Yes, yes, yes. वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं या नहीं, वो देखना पड़ेगा। We have already talked about the women quota only after census. The Hindu newspaper. उसी अगर अभी लगा देते तो क्या दिक्कत है? डेटा नहीं है ना हमारे पास, कैसे आप कर सकते हो? हाँ वही तो। डिलिमिटेशन और के सेंसस का डेटा चाहिए ना, बट सेंसस ही नहीं हुआ है अभी। इसके अलावा और कंसल्ट हो सकते हैं अगर आप अभी लगाते हैं तो डेटा नहीं है वो। चलिए मान लीजिए आपकी बात। तो आप अभी लगाओगे कैसे, डेटा ही नहीं है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा ना उसके बिना वो।
यही सबसे बड़ा कंसर्न है। और सेंसस खुद अभी डिलेड है, पोस्टपोन किया जा रहा है। 9 तारीख पे तारीख कोर्ट, सीजेआई reiterates views against repeated केस adjournment। तो जो अजर्नमेंट होता है केस का कि आज आज नहीं, अगले बार, अगला हफ्ता नहीं, उसका अगला हफ्ता, तो इसका भी एक लिमिटेशन होना चाहिए और उसका मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। जैसे citing the statistics, CJI have said that 178 adjournment slips today. Last 2 months, there were around 3,600 adjournment. I find 2,300 matters that have been mentioned since 2023 September, और उसमें से 15 से 20% ऑफ द फ्रेशली अर्जेंट मैटर्स है। तो देखा जा रहा है कि अजमेंट से क्या हो रहा है कि केस बढ़ते जाता है, उससे खर्चा ही बढ़ते जाता है दोनों का, और जो पेंडिंग ऑफ केस है वो भी बढ़ जाता है। तो उसको कम करना चाहिए बेसिकली। Kaushik, we were talking, Mansi and I was talking about this topic. So one measure we can take that we can have a digital adjournment mechanism, जहां पर जो भी आपको अगर adjournment लेना भी है केस का, तो आप प्रॉपर अपना डाटा दो उस वेबसाइट के ऊपर और उस इंटरफेस के ऊपर, और आप रीजन बताओ कि मेरे ये रीजन है, मैं एडजर्नमेंट चाहता हूँ। तब जज जो है वो आपको फेसलेस मैकेनिज्म के द्वारा आपको अप्रूवल देंगे। अभी क्या होता है कि मैं लॉयर हूँ, मैं जज के सामने गया, मैंने कहा कि जज साहब थोड़ा ये काम नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर पाए, और शर्मा शर्मी मिल जाता है। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो लोअर लेवल के जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, करप्शन बहुत होता है वहाँ पे, उसको थोड़ा रोकने के लिए डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। नहीं, यहाँ ठीक। पे अडजर्नमेंट्स हमें चाहिए क्यों? ये वाला बिहेवियर ही हमें क्यों प्रमोट करना है? अगर आप प्रवेश इसको डिजिटली बोल रहे हो कि डिजिटली होना चाहिए, तो जितना नहीं टाइम मानसी, इन देखिए अडजॉर्न मानसी, प्रवेश सुनने का में कहना बड़ा है कि क्लियर है। लिमिटेड स्टाफ और लिमिटेड रिसोर्स हाँ, के वो है, हिसाब से मैं भी वही कह रही हूँ कि उसको तो बढ़ाएंगे, फिर तो कम हो जाएगा अजमेंट का। नहीं मानसी, पता है ये सिंपल से इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप एक लॉयर है, मैं एक लॉयर हूँ, नहीं, मुझे वो जो है पॉइंट केस। समझ में आ गया प्रवेश जो आपने बोला। मैं बस ये बोल रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसके थ्रू कहीं ना कहीं वो चीज भी प्रमोट ही होगी एडजॉर्नमेंट्स के लिए, उसको आप कैसे कम कर सकते हो उस पर हम फोकस कर सकते हैं। प्रॉपर डिफाइंड फैक्टर्स होने चाहिए। एंड साथ ही साथ जो टाइम इवन एडजॉर्नमेंट हियरिंग्स में चला जाता है, उसको आप वो टाइम आप केस हियरिंग, केस को सॉल्व करने में लगाओगे, तो आई थिंक वो ज्यादा सब्सटैंशियल और इफेक्टिव रहेगा। या द सिमिलर थिंग आई मेंशन ना, कि मतलब जब आप अपील करते हो एडजर्नमेंट मोशन के लिए एज ए लॉयर, मतलब एडजर्नमेंट के लिए आपके केस के लिए, तो वहां पर प्रॉपर मैकेनिज्म होने चाहिए फेसलेस अपील मैकेनिज्म में, कि ये ग्राउंड्स हैं, इनके ऊपर मैं चाहता हूँ। अगर प्रवेश वो नहीं इसका करेंगे। बाद बात कर लेते हैं, अब ठीक आगे है। जाते ठीक हैं। है। मतलब इससे हम लोग बात कर चुके थे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर में, जैसे ही आता है उसका वी विल टेक अप इन अ डिटेल फॉर्म। ये ले सकते हैं जो यहाँ पर्टिकुलरली पैराग्राफ में लिखा है ना कि आरबीआई ने एंड इलेक्शन कमीशन हाँ, इंडिया ये में भी हम लोग ले लिए थे। नारायण मूर्ति just कमेंट ऑन fine। शिफ्ट ऑफ बर्डन ऑन नेशनल बिल्डिंग, ये भी ले चुके। देन लेफ्ट साइड, interest rate will remain high in developed countries, Indian policy maker must ensure macroeconomic stability। और central bank across the much of the developed world have chosen to keep interest rate unchanged। और इसी कारण इंटरेस्ट रेट हाई है हर जगह का। जैसे यूएस में इट इज स्ट्रॉन्ग, थर्ड जीडीपी जो हुआ है उसमें 4.9% रेट ग्रो किया वहां पर। एंड जो फेड टारगेट इट इज अराउंड 2%। कोर इन्फ्लेशन एंड फूड एंड फ्यूल इज इट अराउंड 3.7%। तो ऐसे ही यूके में भी हो रहा है। तो जो इंडिया का है उसको एक तरह से कैलिब्रेट करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलप्ड कंट्रीज, कैसे इन्फ्लेशन को यहाँ पर कम किया जाए, और साथ ही साथ जो एफपीआई का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम इंडिया टू यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज, वो भी कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए अलग से स्कीम खो सकते हैं, बॉन्ड स्कीम हो गया या फिर ट्रेजरी बिल हो गया, उसमें